Welcome everyone to today's vlog. Hope everyone is doing well. आज के इस वीडियो में I will talk about my Singapore trip. I have been to Singapore before. I went with my wife that time. It was a different experience. Singapore is not that far from India, so I thought I'll invite my mom. तो मेरी मम्मी आई थी Singapore. It is a different experience when you are traveling with senior citizens. Singapore is a very exciting place. I think everyone from India should visit Singapore. It's a really good experience. I have to make sure it is comfortable for my mom. Although थोड़ा walking ज़्यादा होता था. Food, I'm going to talk about food. I'm going to talk about the public transport in Singapore, how convenient it is for the senior citizens, about shopping, about the places I took her. Without wasting much time, let's get started. Singapore आने के लिए आपको make sure you have to have a visa. That's obvious. So to get visa, you got two ways. Either you can apply directly, or you can apply through an agent. It costs around about 30 Singapore dollars, or about 1500 to 2000 Indian rupees. So you can apply it CIA, that's the immigration website, or if you go through an agent, it costed my mom around 5 to 6,000 rupees. If you have got someone in Singapore, they can sponsor you if they are permanent residents. या तो you can apply as a tourist. तो entry के लिए you need to make sure you have got your COVID vaccination certificate, or also make sure you fill the SG arrival card. So ये दो main चीज़ें हैं. सिंगापुर में जब आप पहुँचते हो, there is a free Wi-Fi. You can use the free Wi-Fi. If you have activated roaming, you can use the roaming. But I would suggest कि वहाँ का local SIM खरीदो. You can actually buy the local SIM at the airport, or you can buy it outside. So I would suggest कि आप अगर city में जाते हो, you can go to any convenience store and you can get it. I bought a $15 Singtel SIM card. जिसमें काफ़ी डाटा भी था, which lasts for like the SIM card validity is up to 30 days. So I would suggest कि आप maybe once you reach at your hotel and then go around the convenience store and get it. और दूसरी बात है करेंसी एक्सचेंज. थोड़ा कैश अपने साथ रखें एंड देन यू कैन चेंज इट एट द एयरपोर्ट. एयरपोर्ट पे ज़्यादा करेंसी एक्सचेंज मत करवाना, क्योंकि वहाँ पे महंगा होता है. वंस यू गेट इन द सिटी अगेन यू कैन डू इट, बट यू कैन जस्ट चेंज अ स्मॉल अमाउंट. और आप इंडिया से भी करवा सकते हो. अगेन इट विल बी लिटिल एक्सपेंसिव. आपका कार्ड भी चलेगा. इफ़ यू गॉट मास्टर वीज़ा कार्ड, इट्स इन एक्सेप्टेड इन सिंगापुर ईजिली. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी आपका मास्टर और वीज़ा कार्ड चलता है. डिपेंड्स विच कंट्री. मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से फ्लाई कर रहा था, तो मेरा दे ऑलरेडी मेंशन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मास्टर वीज़ा कार्ड आर नॉट वैलिड. एयरपोर्ट तो पहुंच गए. अब एयरपोर्ट से हाउ टू गो टू द सिटी. देयर आर सर्टेन वेज. फर्स्टली यू कैन टेक अ टैक्सी, टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट. यू गॉट ग्रुप ऑफ 3 or 4. I would suggest just take a taxi. It would be convenient. It won't be that expensive. क्योंकि अगर आप जो MRT कार्ड होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो खरीदते हो from the airport, it would cost about $10 and $5 is already loaded in that. And then you can take the train. It's a little bit of walking. You have to change the train as well. So that's the issue. So I would suggest कि अगर पहली बार है तो just take a taxi which would be easily available. और टैक्सी में भी ऐसा है, Grab बहुत चलता है वहाँ पे Uber नहीं चलता. तो make sure you download the Grab app. If you can do it in India, that's good. If you can't, just do it in Singapore airport. To the city, it costed me around about $25 to $30. अच्छा, like app में I would suggest is move it. उसमें काफ़ी आपको, आप जब destination डालोगे तो it will give an option कि public transport से time लगेगा. और it's very much like Google. I actually used Google. So you download those apps. It will be very helpful, so you don't waste your time. So I booked my accommodation close to Little India. There are several reasons I booked near Little India, but जो last time मैं गया था मेरी वाइफ के साथ, I booked in the city. Food के options काफ़ी है near Little India, near walking distance. You can get South Indian, you can get North Indian. Especially with my mom, I wanted to make sure कि food is readily available close by, so हमें ज़्यादा travel ना कर. Solo, you can choose different hostels as well, which will be very reasonable. But आप अगर family के साथ travel कर रहे हो तो I would definitely suggest कि hotel में रहो. Hotels like Holiday Inn Express, which I stayed in, it was very reasonably priced rather than the other booking.com या Expedia पे आप search कर, or even you can directly book to the hotels. They will have some better deals as well. So ये था accommodation के.
food is not that expensive, just depends. Serving is really good. थोड़े साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में आपको बनाना लीफ में सर्व किया जाएगा, which is very authentic, which is. So guys, I was looking for something else, so I just found this place. Price was very reasonable, very cheap, and of like Indian options. But if you go, like you can find Malaysian, Chinese options, Vietnamese, everything. So it's a really nice place if you are a foodie. अब करते हैं बात ट्रांसपोर्टेशन की कि यू कैन टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो. अगर आपके पास जो MRT पास आपने पहले लिया हुआ था, you can use that pass, just load it up, and it's not expensive. I think it's $80 per trip, depends on the distance as well. और उसको जो उनका जो मैप है, it's very easy to follow in MRT. Firstly, if you just look at the map कि आपको जाना कहाँ पे है, और जो कलर कोडिंग है उसके हिसाब से आपको ट्रेन चेंज. और ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो तो अभी भी यू नीड टू वेयर अ मास्क. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेक श्योर गाइज कैरी अ मास्क. बस में जाओगे, यू जस्ट हैव टू टैप इन, एंड अब जब उतरोगे टैप ऑफ करना. कैन यूज योर वीज़ा और मास्टर कार्ड एज वेल, विच इज़ अ ग्रेट फीचर, बट जस्ट चेक इफ़ योर मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड विल वर्क. और जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कैश भी कैरी करना है, और जब आप बस में जाओगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास एग्जैक्ट चेंज. तो ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में. बट इफ़ यू वांट टू ट्रैवल अराउंड, और आप सोचते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज टू जंप ऑन टू दिस टूरिस्ट बस. दिस इज़ अ हॉप इन हॉप ऑफ बस. यूजुअली इसका कॉस्ट है अराउंड $48. बट देयर इज़ अ ट्रिक, आप यहाँ पे पैसे बचा सकते. बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग विद सिंगापुर एयरलाइंस, देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड पेलागो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो अगर आप ये यूज़ करोगे, इट कॉस्टेड मी रियली चीप फॉर $25. चूज 14 अट्रैक्शन. सो वहाँ पे 2 सेक्शन बने होंगे. सो फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन यू कैन ओनली चूज 1, एंड फ्रॉम सेकेंड सेक्शन यू कैन चूज 13 अट्रैक्शन. तो जो पहले सेक्शन में था हॉप इन हॉप ऑफ का ऑप्शन, तो मैंने वो चूज़ किया. आप डायरेक्टली खरीदने जाओगे, इट विल कॉस्ट यू $48. बट आप इसके थ्रू गए तो $25. नॉट ओनली दैट, बट यू कैन ऑल्सो हैव द 13 अट्रैक्शन. ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप सिंगापुर एयरलाइन से ट्रैवल किए होने चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू अवेल दिस ऑफ बस. काफ़ी अच्छा है वो. एक्चुअली आपको सारे पॉइंट्स पे ले कॉमेंट्री भी देगा कहाँ कहाँ पे जाना है, क्या क्या करना है. तो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड ऑप्शन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर एल्डरली पेरेंट्स. तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि आप ये हॉप इन हॉप ऑफ बस में चढ़े. तो वो मरीना बे लेके जाएगा आपको, नियर द एकदम पास में ही लेके जाएगा, लेकिन आप वहाँ से वॉक कर सकते हो, या वहाँ से शटल बस भी है. और फिर बोटेनिकल गार्डन जो काफ़ी दूर है, तो आप उस बस में रहोगे तो आप वहाँ पे जा सकते हो. ऑर्चिड जो मॉल है वहाँ पे लेके जाएगा, लिटिल इंडिया लेके जाएगा. तो आप एक्चुअली उसी में बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकते हो. आप चूज़ कर सकते हो मुझे कहाँ पे उतरना है और कहाँ पे चढ़ना है. सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप अपने एल्डरली पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो ये हॉप इन हॉप ऑफ बस में ज़रूर जाए, एंड जस्ट ट्राई टू बाय द टिकट इन एडवांस. अब बात करते हैं शॉपिंग के बारे में. तो यू हैव गॉट डिफरेंट ऑप्शन. अगर आपको थोड़ी महंगी चीज़, ऐसे इन रीजनेबली ब्रांडेड चीज़ खरीदनी है, तो ऑर्किड स्ट्रीट इज़ अ रियली गुड पॉइंट. वहाँ पे आप जा सकते हो. वहाँ पे काफ़ी ब्रांडेड चीज़ें हैं. नहीं तो आपको लोकल मार्केट में जाना है तो बुगीज जंक्शन इज़ अ रियली गुड प्लेस. यू कैन गो देयर, और काफ़ी रीजनेबल, और इट्स वेरी क्लोज टू द सिटी एज वेल. और जैसे मैंने बोला, अगर हॉप इन हॉप ऑफ बस में जाते हो तो इट विल ड्रॉप यू ऑफ एट द बुगीज जंक्शन. और एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि कहीं कहीं स्टोर पे आप एक्चुअली वैट क्लेम कर सकते हो एट द एट सर्टन कंडीशंस ऑन द वैट क्लेम. कि आप कैसे कर सकते. मेक श्योर गाइस कि आप इसका फ़ायदा उठाओ. अब बात करते हैं टूरिस्ट प्लेसेस की. तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप टूरिस्ट बस लोगे तो उसका काफ़ी फ़ायदा होगा. तो जो हमने किया, हम गए थे डेक, स्काई डेक पे, वो जो काफ़ी पॉपुलर है. अगर आप इवनिंग टाइम जा, उसका काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा. दैट यू कैन डू फ्लावर डोम, क्लाउड डोम, वो सब भी कर सकते. इवनिंग के टाइम जाओगे तो ये सब कुछ भी कवर कर सकते हो. या तो आप थोड़ा जल्दी जाओ, पहले जो डोम्स है वो कवर करो, उसके बाद डेक करो. चीज़ अराउंड 7:30 जो शो होता है, लाइटिंग शो,
उसको डेफिनेटली मिस मत करना। इट्स वन ऑफ द बेस्ट अट्रैक्शंस। और एल्डरली सिटीज़न के लिए वहाँ पे एक्चुअली शटल बस भी चलती है। अगर आप वॉक कर सकते हो तो इट्स गुड, नहीं कर सकते हो वहाँ पे शटल बस भी चलती है। यू जस्ट नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन एट द स्काई डेक। लिटिल इंडिया, अगर साउथ इंडियन टेम्पल से आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो, टेक दैट हॉप इन हॉप ऑफ बस, वो एक्चुअली आपको वहाँ पे उतारेगा। यू कैन विजिट द टेम्पल्स, मोस्टली साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं वहाँ पे। और और दूसरी चीज़ है, आप चाइना टाउन जा, काफ़ी फेमस हॉकर्स मार्केट है। और यहाँ पे हॉकर्स मार्केट काफ़ी चलते हैं, और काफ़ी रीजनेबली प्राइस भी। इफ़ यू आर वेजिटेरियन काफ़ी मुश्किल पड़ेगा वहाँ पे, स्पेशली विथ योर पेरेंट्स। वहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हो, कैन ईट फ्रूट कॉल्ड ड्यूरियन, ठीक है, और ट्राई कर सकते हो। इट्स वेरी डिफरेंट और काफ़ी पॉपुलर है इन सिंगापुर। वो एक्चुअली जैक फ्रूट जैसा ही लगता है अगर आपने जैक फ्रूट खाया, बट इट्स स्टिल डिफरेंट। मैंने उसको ट्राई किया और उसकी क्वालिटी अलग थी, तो गो फॉर द बेस्ट क्वालिटी। इट वुड बी एक्सपेंसिव। जैसे ज़ू है उसके लिए भी आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है सेंटोसा आइलैंड, पूरा दिन आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो इफ़ यू वांट टू गो टू सेंटोसा आइलैंड। और सेंटोसा आइलैंड जाने के लिए इधर आप MRT ले सकते हो, या तो आप रोपवे से भी जा सकते हो, विच वुड कॉस्ट आई थिंक $30-35। और जैसे मैंने आपको बताया, जो मैंने अट्रैक्शन का जो पैकेज लिया था उसके अंदर वो भी इंक्लूडेड था। तो मेक श्योर कि आप ये जो पैकेज डील है ना वो ट्राई करो, क्योंकि हर एक अट्रैक्शन पे आप जाओगे तो इट वुड कॉस्ट। आप एक्वेरियम जा सकते हो, एक्वेरियम इज़ रियली। और जो सेंटोसा आइलैंड है आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो अलॉन्ग विद द यूनिवर्सल स्टूडियो। Number 1, always carry an umbrella. Number 2, always carry a mask. Things to try. Number 1, durian fruit. Number 2, kaya toast with butter. And number 3, teh tarik. Guys, let's talk about the jewel at Changi. जब आप यहाँ पे पहुँचोगे, most important thing is don't clear the immigration. It is called one of the best airport for the reason $1.35 billion का spending हुआ है. It has got a beautiful rainforest, 130 feet का waterfall है, kids play area है, theater, hotels, supermarket, 24 hour cinemas भी है. और you can say it's a basically lifestyle hub, partly luxury mall and partly indoor rainforest. और of course बीच में 130 feet का waterfall in the middle makes the tallest indoor waterfall. अब ये एंट्री तो फ्री है यहाँ पे, but if you're doing any activities it will cost. So make sure you check their website. Hope you found some interesting facts about Singapore in this video, especially when traveling with your parents. Signing off for now. You all take care. See you all in the next video. Bye bye.